Hello student, this is Pratibha Singh again with you from Shivrat Singh Children Academy. Students, in previous video we have completed our chapter 9, The Great Stone Face part 1. Now in this video we will start our new chapter, but the rest of the story of chapter 9 which has not completed yet in chapter 10, The Great Stone Face part 2. So without being delay, let's start the chapter. The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. The years hurried. साल जो थे वो जल्दी जल्दी बीतते गए. And brought white hairs, और आ गए white hairs. Now Ernest grown up as an old man. He had white hairs on his head and wrinkles and furrows on his face. Wrinkles में झुर्रियाँ आने लगी, furrows में भी झुर्रियाँ आने लगी उसके चेहरे पर. But not in vain he had grown old. मगर अभी वो अपने अंदर की शक्ति से ओल्ड नहीं हुआ था, बूढ़ा नहीं हुआ था. More numerous than white hairs on his head were the wise thought in his mind. जितने उसके सिर पे सफ़ेद बाल थे उससे ज़्यादा वाइज थॉट, बुद्धिमानी के विचार उसके दिमाग में थे. मतलब अपने सफ़ेद बालों से ज़्यादा बुद्धिमानी के विचार उसके दिमाग में थे. And Ernest had ceased to be obscure, unshouted for, undesired, had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. जो यही सब बातें थी अर्नेस्ट की, वो उसे फेमस कर रही थी, उसका फेम बढ़ा रही थी. He had become famous beyond the limits of the valley. अब वो वैली से भी परे, वैली से भी आगे तक फेमस हो गया था. College professor and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever come uppermost or lay deepest in his heart or their own. Now he became so famous beyond his valley. अब वो अपनी वैली से काफ़ी आगे तक फेमस हो गया था. College professors and the famous personalities of the cities came to meet him, came to see him. उससे मिलने आते थे. And he expressed his thoughts. वो अपने thoughts express करता था जो कि उसके दिमाग में आते थे. लोग उससे converse करते थे और अपनी problem के short out भी उससे चाहते थे. While they talked together, his face would brighten unaware and shine upon them as with a mild evening light. While they talk together, जब वो लोग आपस में बात करते थे, कौन लोग? अर्नेस्ट एंड अदर पीपल. His face would brighten, उसका फेस चमकने लगता था. Unaware and shine upon them, और बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगता था, उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगता था. एज विथ अ माइल्ड इवनिंग लाइट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शाम की लाइट शाइनिंग करती है, वैसे ही उसका फेस शाइन करने लगता था. While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. जब अर्नेस्ट बूढ़ा ही होता जा रहा था तो गॉड ने एक पोइट भी भेजा. He was also the native of this valley. वो भी इसी वैली का रहने वाला था.
but had spent the great part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. मगर उसने वैली में टाइम ना बिताकर शहरों में रहा और अपना म्यूजिक उसने चारों तरफ बिखेरा. Neither was the great stone face forget, for the poet had celebrated it in a poem. वो भी ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूला था और ही सेलिब्रेट ग्रेट स्टोन फेस इन हिज पोएम, और अपनी पोएम्स में वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में ज़रूर लिखता था. द सॉन्ग ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और जो ये सॉन्ग थे वो अर्नेस्ट तक भी उस पोएट के पहुँचते थे. He read them after his customary toils, seated on the bench before his cottage door. He read the poem of this poet. अर्नेस्ट भी उसकी पोएम्स पढ़ा करता था. अपने बाकी के कामों को निपटाकर वो उसकी पोएम्स पढ़ा करता था. अपने कॉटेज के बाहर जो बेंच थी उस पर बैठकर उन पोएम्स को अपने बाकी के काम निपटाकर पढ़ा करता था. As he read, he lifted his eyes to the mountain. जब वो ये पोएम्स पढ़ा करता था तो उसकी आंखें किधर रहती थी? माउंटेन की तरफ रहती थी. Oh great stone face, he said, is not this man worthy to be your likeness? Oh great stone face, he said. वह कहता है, ओ ग्रेट स्टोन फेस, इज नॉट दिस मैन वर्थी टू बी योर लाइकनेस? क्या ये मैन जो है, जो ये पोइट है, ये क्या तुम्हारी तरह नहीं दिखता? द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर. फेस स्माइल करता हुआ तो दिखता था ग्रेट स्टोन फेस, बट डिड नॉट गिव आंसर, मगर आंसर नहीं देता था. नाउ इट हैपेंड दैट द पोइट थ्रू he lived so far away had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity in his life. Now the poet heard about the fame of Ernest. He heard about the simplicity of Ernest and wished to meet him. उसने उसके सिंपलिसिटी के बारे में सुना, उसकी फेम इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, उसकी वॉइस विजडम के बारे में इतना सुना, वॉइस थॉट्स के बारे में इतना सुना कि वो उससे मिलना चाहता था. One summer day, एक समर डे, therefore he arrived at Ernest's door. इसलिए वो एक समर डे में अर्नेस्ट के घर पहुंच गया. Where he found a good old man holding a book in his hand, which he read, and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. When he reached at the home of great stone, at the home of Ernest, he found that an old man read a book. An old man holding a book in his hand. एक old man जिसने कि पकड़ रखी है एक बुक अपने हाथ में, which he read, जो कि वो पढ़ रहा है, and then with the fingers between the leaves looked lovingly at the great stone face. His finger between the pages of book and he lovingly gazed at the great stone face, और वो बहुत ही प्यार से great stone face की तरफ देख रहा था. Good evening, said the poet. Can you give a traveler a night's shelter? Good evening. क्या आप एक ट्रैवलर को नाइट में शेल्टर दे सकते हैं, आसरा दे सकते हैं?
ग्लेडली, खुशी से, आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने आंसर किया, एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, उसके बाद उसके चेहरे पे स्माइल भी आई, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटलिटी एट अ स्ट्रेंजर। वो कहने लगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ग्रेट स्टोन फेस किसी स्ट्रेंजर पर इतना ज़्यादा काइंड कभी नहीं हुआ है। नाउ पेज नंबर 134। देन पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर। अब पोइट उसके साइड में बैठ गया और देन दे टॉक टू ईच अदर, अब एक दूसरे से बात करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वॉइस एंड जेंटल एंड काइंड। पोइट ने ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं बात की थी जैसे कि अर्नेस्ट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड था, बहुत ही ज़्यादा जेंटल था और बहुत ही ज़्यादा वॉइस भी था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। ऐसे किसी भी इंसान से कभी भी वो नहीं मिला था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाई द लिविंग इमेज फ्लंग आउट द पोइट्स माइंड। जो अर्नेस्ट था, अब पोइट के माइंड में वो फ्लंग आउट, बह रहा था। अर्नेस्ट की जो लिविंग इमेज थी वो पोइट के माइंड में बह रही थी। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट ही इमेजिनेट दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज वेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू। व्हेन Ernest heard the poet, as seen that the great stone face was waiting to listen them। जब अर्नेस्ट उसकी बातें सुन रहा था, पोइट की बातें सुन रहा था, तो ऐसा लग रहा था जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी बैंड हो गया है, थोड़ा सा झुक गया है उनकी बातें सुनने के लिए। ही गेज इनटू द पोइट्स आईज, और वो निहार रहा है पोइट्स की आईज में। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। अर्नेस्ट आस्क्ड हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, मेरे भगवान के दिए हुए गेस्ट, मेहमान, तुम कौन हो? द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। जो अर्नेस्ट बुक पढ़ रहा था उसमें अपनी फिंगर्स डाल दी। यू हैव रीड दीज पोएम, ही सेड ही, यू नो मी देन फॉर आई रोट दैम। कि उसने वो पोएम पढ़ रखी हैं एंड ही न्यू हिम, और वो उसे जानता है, बिकॉज ही रोट दैम, क्योंकि ये जो पोएम है वो उसी ने लिखी है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर्स, he turned towards the great stone face, then back. He shook his head and signed. Again and again Ernest examined the face of the poet and the great stone face. अब बार बार जो ग्रेट स्टोन फेस से अर्नेस्ट पोइट का चेहरा मिलाने लगा और अपना सिर झुका के जैसे कि हाँ का इशारा कर रहा हो। Why are you sad? enquired the poet. पोइट ने इंक्वायर्ड किया, पूछा कि तुम इतना सैड क्यों हो? Because, replied Ernest, all through life I have waited the fulfillment of a prophecy, and when I read this poem I hope that it might be fulfilled in you. मैं पूरी जिंदगी, क्योंकि मैं पूरी लाइफ वेट करता रहा वो उस इंसान का, मैं पूरी लाइफ वेट करता रहा उस प्रोफेसी के कंप्लीट होने का।
एंड व्हेन ही रेड द पोएम ऑफ द पोएट, और जब उसने पोएट की पोएम्स को पढ़ा, he hoped that it might be fulfilled in the poet, तो उसे उम्मीद थी कि उसका चेहरा, पोएट का चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से जरूर मिलता होगा, उसकी पोएम को पढ़ के लगा। You hoped, answered the poet, faintly smile, to find in me the likeness of great stone face. I am not worthy to be its likeness. क्या तुमको उम्मीद है? स्माइल करते हुए, बिल्कुल हैरान होके स्माइल करते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता हूँ? मैं इस लायक नहीं हूँ। एंड वाई नॉट? आस्क अर्नेस्ट। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट वर्थी, और उसने बुक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्यों नहीं? आर नॉट दोज थॉट वर्थी, क्या ये जो थॉट्स हैं वो लायक नहीं है? यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग्स, तुम सुन सकते हो एक दूर से आती हुई हेवनली वॉइस इन सॉन्ग्स में। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट करस्पॉन्डेड विथ माई थाट्स, मगर जो मेरी लाइफ है वो इतनी हारमोनियल नहीं है जैसे कि मेरी थॉट्स हैं। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे कभी ग्रैंड ड्रीम्स हुआ करते थे, बड़े ड्रीम्स हुआ करते थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, मगर वो केवल ड्रीम्स ही रह गए। समटाइम आई लेक फेथ इन माई ओन थॉट्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अपनी थॉट्स में कमी नज़र आती है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, फिर तुम्हारे जैसा प्योर सीकर जो कि पहचान सकने वाला है और इतना नॉबलर है, फिर मेरे जैसे में कैसे ग्रेट स्टोन फेस जैसा सिमिलर फेस ढूंढ सकता है? द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेड विद द टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और ये कहते हुए पोइट बहुत ज़्यादा सैड हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, और ऐसा ही अर्नेस्ट के साथ भी हुआ, दोनों सैड हो गए। एट द आवर ऑफ सनसेट, means it is now time of sunsetting, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in open air, or it is the custom that Ernest had to speak in front of his group of neighbors in open air। तो ये एक कस्टम बन गया था कि अर्नेस्ट को अपने जो नेबर्स का, अपने पड़ोसियों का एक ग्रुप था, उनके सामने अच्छी बातें रखनी होती थी खुली हवा में, मतलब ओपन किसी जगह पर। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, आर्म इन आर्म, फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस। तो उस मीटिंग प्लेस पे दोनों अर्नेस्ट और पोइट आर्म इन आर्म, मतलब विद आर्म इन आर्म, हाथों में हाथ डालकर गए मीटिंग प्लेस पे, जहाँ से ग्रेट स्टोन फेस भी दिखाई देता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ सिमिलर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, और अर्नेस्ट ने बिल्कुल सिमिलर काइंडनेस से, जो कि मिलती जुलती दयालुता थी, बिल्कुल समान दयालुता थी, उसके साथ अपनी ऑडियंस की तरफ देखा। He began to speak to the people what was in his heart and mind. उसने लोगों से वो बोलना शुरू किया, वो बताना शुरू किया जो उसके हार्ट में और माइंड में था। His words had power because they agreed with his thought. He used powerful words. उसके वर्ड्स में पावर थी क्योंकि सारे लोग उसकी बातों से अग्रीड थे, सहमत थे। एंड हिज थॉट हैड रियलिटी एंड डेप्थ बिकॉज दे
harmonized with the life which he had always lived. और उसकी बातों में सच्चाई और गहराई थी, क्योंकि वो जैसी बातें बता रहा था लोगों को, वो वैसी ही लाइफ जीता था. It was not mere beneath that the preacher uttered. They were the words of life. अर्नेस्ट जो कि स्पीकर था, उसकी कोई भी बात गलत नहीं थी, क्योंकि वो सारी बातें लाइफ से जुड़ी हुई थी. A life of good deed and selfless love was melted into them. एक ऐसी लाइफ जो कि अच्छे कामों से भरी हुई हो और सेल्फलेस लव से भरी हुई हो, ऐसी लाइफ के बारे में उसने लोगों को बताया. जैसे कि वो जीता था, लोगों से सेल्फलेस प्यार करता था और उसमें सच्चाई भी थी. The poet, as he listened, felt that the life and the character of Ernest were a nobler strain of the poetry than he had ever written. जब पोइट ने उसे सुना तो बिल्कुल उसे ऐसा लगा कि अर्नेस्ट की लाइफ उतनी ही नॉबलर है जैसे कि उसने अपनी पोइट्रीज में लिखी है. His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hairs diffuse about him. पोइट की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अपने आप से कहा कि उसने इतना लायक, सेज में संत या नोबल मैन, इतना लायक, इतना अच्छा नोबल मैन नहीं देखा जो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, स्वीट हो और थॉटफुल भी हो. और उसके जो वाइट हेयर्स थे, उसके वाइट हेयर्स चारों तरफ उसकी ग्लोरी को बढ़ाते हुए फैले हुए हैं. At a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of setting sun, appeared the great stone face with white mists around it, like the white hairs around the brow of Ernest. थोड़ी ही डिस्टेंस से, मगर जहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा हो. The golden light of setting sun spread around the great stone face with white mist. जो गोल्डन लाइट थी सन सेटिंग की, वो सफ़ेद कोहरे के साथ ग्रेट स्टोन फेस के चारों ओर फैली हुई थी. और ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि अर्नेस्ट का फेस सफ़ेद बालों से घिरा हुआ हो. एट दैट मोमेंट, और उसी मोमेंट में, अर्नेस्ट फेस लुक on an impression so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout, "Behold, behold!" और एक ऐसा ही मोमेंट था जिसमें कि अर्नेस्ट के फेस का जो इम्प्रेशन था वो इतना ग्रैंड था, तो पोइट चिल्लाया, "Behold, behold!" मीन्स वॉच, वॉच, देखो, निहारो. Ernest is himself the likeness of great stone face. Ernest खुद ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है. Then all people looked. तब सारे लोग देखने लगे. And saw that what the poet said was true. तो उन्होंने देखा कि जो पोइट ने कहा है वो सच है. The prophecy was fulfilled. और जो प्रोफेसी थी, जो प्रिडिक्शन था, वो पूरा हो गया. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by
and by appear wearing a resemblance to the great stone face. मगर जो अर्नेस्ट था उसने अपनी स्पीच फिनिश की, जितना उसे कहना था, उसके बाद पोइट का आर्म पकड़ा और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा, अभी तक इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई नोबलर और वाइजर मैन जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता हो वो आए। इसी के साथ स्टोरी फिनिश होती है। तो आपने क्या देखा, अर्नेस्ट खुद ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता था। तो स्टूडेंट, नाउ वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑन पेज नंबर 136। Write true and false against each of the following statement. Statement number 1. Ernest's words reminded people of the wise old saying. Number 1. This is true. Now number 2. Number 2 is total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face similar. This is false because they came to meet him and share their thoughts. The great stone face confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of its likeness. पोइट उसकी तरह था? नो, दिस इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स। नंबर 4. Number 4 is when Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally. This is true. दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दूसरे की रेस्पेक्ट की। Number 5. The poet along with Ernest addressed the inhabitants of the valley. पोइट ने भी एड्रेस किया लोगों को, वैली के लोगों को? नो, ओनली अर्नेस्ट। नाउ नंबर 6. The poet realized that Ernest's thought were far nobler than his own verse. This is true. जो अर्नेस्ट की थॉट थी वो पोइट के जो वर्स थे, जो राइटिंग थी, उससे भी ज़्यादा बेहतर थी। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वी विल डू इन आवर इंग्लिश लिटरेचर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5. राइट अर्नेस्ट और पोइट अगेंस्ट each statement below. Statement number 1. There was a gap between his life and his word. किसकी वर्ड्स में और कितने लाइफ में गैप था, मतलब डिफरेंस था पोइट के? नंबर 1 is poet. You will write down poet. Now number 2. His words has power of truth as they agreed with his thought. किसके वर्ड्स बहुत ही पावरफुल थे? अर्नेस्ट। Number 3 is his words were as soothing as the heavenly song but only as useful as the virgin dream. This is poet. उसके वर्ड्स तो हेवनली थे मगर लाइफ में उसके कुछ भी इतना खास नहीं हुआ था। नंबर 4. His thoughts were worthy. उसकी थॉट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। अर्नेस्ट। नंबर 5 is whatever he said was true itself. जो भी कहता था वो अपने आप में ही सच था। अर्नेस्ट। Number 6 is his poem were noble.
Poet, because poet has written all the poem. Poet. Number 7. Number 7 is his life was nobler than all the poem. This is Ernest. Number 8. Number 8 is his lacked faith in his own thought. उसे कभी कभी अपने थॉट्स में ही विश्वास नहीं दिखता था, अपने थॉट्स में ही विश्वास कम दिखाई देता था. तो वो कौन था? पोएट. Number 9 is his thoughts had power as they agreed with the life he lived. किसके थॉट्स में, किसके वर्ड्स में इतना पावर था कि जैसे कि वो लाइफ जीता है? अर्नेस्ट. Number 10. Number 10 is the greatness lies in truth. Truth is best expressed in one's action. He was truthful, therefore he was great. Simple. Ernest. Ernest. Now you will do these exercises in your book. I hope you have understand this chapter very well. If you have any confusion or query, please text message on my personal WhatsApp number. Thank you and have a nice day.